Good morning, everyone. Well, students, today we are starting our new chapter, chapter number 19, rectification of errors, with the expectation that you have completed your previous chapters. Okay. So, rectification of error. As usual, we have to understand its name first. What is the meaning of rectification? Rectify करना किसी चीज़ को. Rectification is सही करना, correct करना. All right. So what happens while doing the entries, while doing the journal entries, or you can say while doing the accounting, you commit some mistake, knowingly or unknowingly some mistakes takes place. Okay, and it's not a mathematics that or it's not your classroom that you take eraser, just erase and write down. It doesn't happen. Okay, because things have taken place already. So we have to pass rectified entry to remove its effect. Are you getting my point? We have done something, one entry we have passed, and if we have some mistake, so we have to pass another entry to rectify that mistake. We can't erase that, we can't do any changes over there. Okay, so that is rectification of error. Simple meaning of the rectification of error is you have committed some mistake and then we rectify that mistake. Okay, now the different things are there, at different places, at different stages we are committing mistake. So how to handle all these things? So I'm reading it for you. Well, rectification of error depends upon the time of their deduction and time of the error. That is what I have I've told you. Depends at what time, at what stage of your accounting you have committed mistake. Okay, so it may be discussed as follows. They have the different stages. The first one, rectification of error before preparation of trial balance. You might be knowing at this stage that we prepare the trial balance. When do we prepare? First we pass the journal entry, then we post the entries into ledger, and from the ledger, balances of the ledger, we prepare trial balance. Okay, so first one is a rectification of error before preparation of the trial balance. You deduct the error before preparing the trial balance. Are you getting my point? Trial balance बनाने से पहले ही गलती पकड़ में आ गई है, and you rectify at that stage. Okay. Second one, rectification of error after the preparation of trial balance but before preparation of your final accounts. Okay, final accounts बनाने से पहले, जो कि अभी हमारा चैप्टर बाकी है, हमें करना है, राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो ट्रायल बैलेंस बन चुका है बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी हमने प्रिपेयर नहीं की है, फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाए हैं. तो उस स्टेज में हमें गलती का पता लगता है. वी लोकेट द एरर एंड वी रेक्टिफाई दैट. Third one, rectification of error after preparation of the final accounts. Well, financial statements are done at the end of the year. You have prepared the final accounts. Now you just came to know about the mistake. Here you deducted the mistake. So can we rectify this in this current year? No, we can't, because final accounts कब बनाते हैं? At the end of the year. Financial statement जहाँ balance sheet हमारी tally होती है. Okay, so you have tally the balance sheet somehow. ट्रायल बैलेंस में पढ़ा था ना, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता तो हम सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं. सो दैट वे वी वर इन हरी, वी डिडंट हैव टाइम एंड वी हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो आपने बैलेंस शीट कैसे भी करके टैली कर दिया और वहाँ पे सस्पेंस आपने ले लिया है. ठीक है, सो योर फाइनल अकाउंट्स आर रेडी. नाउ यू लोकेट द एरर, आई मीन यू डिडक्टेड द एरर, सो दैट कैन बी रेक्टिफाइड इन नेक्स्ट ईयर ओनली, क्योंकि अगले दिन तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा. सो यू rectify your errors in the next year. So students, this is not in your syllabus. Okay, next accounting year में जो हम करते हैं rectification, ये वाला जो stage है, that's not in your syllabus. Okay, and first two stages we will be discussing here. Have you understood? Well, now the first one is rectification of error before preparation of trial balance. Okay, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपका जो एरर है, गलती है, वो फाइंड आउट कर ली है आपने एंड यू आर रेक्टिफाइंग दैट. वेल, दिस इज ऑल्सो टू टाइप ऑफ थिंग्स, सिंगल साइडेड एंड डबल साइडेड. सम मिस्टेक्स आर देयर विच अफेक्ट्स बोथ द साइड अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम. आपने दोनों तरफ गलती कर दी है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी. ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड, द फर्स्ट वन, एरर्स विच डोंट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस or two-sided error. Okay,
सो टू साइडेड एरर, दोनों जगह आपने गलती की है. सो दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स डजंट अफेक्ट योर ट्रायल बैलेंस. दोनों तरफ सेम गलती की है. फॉर एग्जाम्पल, एंड देर आर ऑल्सो डिफरेंट स्टेजेस दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल, बट वन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू हाउ दिस टेक्स प्लेस. Well students, salary paid to Ram. Tell me the entry. Yes. Ram to salary. Ram debited to salary. आप Ram debit to salary. Very good. और okay. Yes. Salary to Ram. Yes. आप गगनदीप. सैलरी पेड टू राम. बोलो बेटा, जिसको पता है बोलो. राम अकाउंट डेबिट टू सैलरी. बेटा, इफ यू आर टेलिंग दैट यू हैव डन ऑल द एंट्रीज, सो दिस इज योर टेस्ट. ये एंट्री मैंने पूछी है, बहुत सिंपल है, तो ये किया है आप लोगों ने. एब्सोल्युटली करेक्ट. सैलरी किसको पे करते हैं? किसी इंसान को ही पे करेंगे ना. आइदर दिस इज पेड, इट इज टेलिंग पेड, इट इज नॉट आउटस्टैंडिंग. सैलरी पेड, कैश चला गया है. हाउ सिंपल. कैश इज गोइंग टू कैश. सैलरी पेड टू राम. पेड किस चीज में पे करते हैं? आइदर थ्रू द चेक और कैश. सो वी आर टेकिंग इन द सिंपल वे. कैश हम पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, इट्स गोइंग. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सैलरी पेड 500. ओके, टू हुम यू आर पेइंग? राम. तो क्या हम राम लिखेंगे? राम, श्याम, मोहन, किसी को भी पे किया जाता है, बट दिस इज एन एक्सपेंसेस एंड द नेम ऑफ एक्सपेंसेस इज सैलरी. ओके, सो द राइट एंट्री इज सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द करेक्ट एंट्री, बट यू हैव गिवन द लाइव एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ मिस्टेक. एक ने क्या कहा? राम अकाउंट डेबिट टू सैलरी, ये कहा आपने. दूसरे ने क्या कहा था? सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम. और भी कई सारे वेरिएशंस आप लोग दे सकते हैं, आप लोगों की पूरी छूट है. ठीक है, तो ये क्या चीज है? क्या ये सही एंट्री है? यस, इट हैपन समटाइम, यू नो. अगर मैं इनको आज अकाउंट्स का काम करने बैठा दूं, बिजनेस का, तो ये ऐसे काम कर देंगे. ऐसे करेंगे तो फिर बाद में क्या करना पड़ेगा? सीए को आके रेक्टिफाई करना पड़ेगा. ठीक है, आर यू गेटिंग? तो ये नाउ व्हाट यू हैव डन, देयर इज अ मिस्टेक, डबल साइडेड मिस्टेक, टू साइडेड मिस्टेक. राम का अकाउंट भी गलत हो गया और सैलरी का भी गलत हो गया. एंड इफ यू टेक दिस वन, सैलरी भी गलत हो गई, राम भी गलत हो गया. तो दो अकाउंट गलत हो गए. हाँ, ये सही हो गया. ठीक है, बट हेयर दिस वन इज टू साइडेड एरर. ठीक है, तो दोनों अकाउंट गलत हो गए आपके. तो क्या ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ेगा इसका? नहीं पड़ेगा. ट्रायल बैलेंस टैली करेगा. ये आपकी कौन सी मिस्टेक है? इफ यू हैव वॉच्ड द वीडियो, प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल. ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल मीन्स योर प्रिंसिपल इज रॉन्ग, योर कॉन्सेप्ट्स आर रॉन्ग. राम को डेबिट नहीं करना था, सैलरी को क्रेडिट नहीं करना था, बट डेबिट एंड क्रेडिट में यू विल फाइंड द इक्वल अमाउंट्स आर देयर. So while preparing the trial balance, and in the correct entry also we have the equal amount in debit and credit. Are you getting my point? Yes, those who are staying at home, are you getting students? तो यहाँ पे 500 and 500 दोनों जगह था डेबिट एंड क्रेडिट में, which you have done through the wrong entry also. So we have the mistake at both the sides, but your trial balance tally. Are you getting? So errors of principal can't be deducted through the trial balance. Are you getting? So we have to rectify these kind of thing. I hope it is clear what are two-sided error. Next we have errors which affect the trial balance or one-sided error. दूसरे कौन से होते हैं? सिंगल साइडेड, कि आपने किसी एक तरफ गलती कर दी है and this affects the trial balance. Okay, like simple example. Yes please. Although we have so many examples which we will be doing in detail, but here salary account debit to cash. तुषार बेटा, बुक में मत देखो, बुक आपके पास 24 घंटे है, चेक कर रहे हो क्या गलत पढ़ा रही हूँ आपको? चलो ठीक है, कर लेना चेक आराम से. ठीक है, लेकिन अभी ये सुन लो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश. ओके,
So here one can see the entry is okay but amount is wrong. Single sided error. आपका सैलरी अकाउंट इज परफेक्टली ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, ठीक है, अमाउंट भी अकाउंट भी दोनों ठीक है, बट कैश में आपने 5000 क्रेडिट कर दिया, यानी 5000 निकल गया, ऐसा आपने मेंशन कर दिया। तो अगर आप ये चीज़ ट्रायल बैलेंस में मेंशन करेंगे तो क्या ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा? इट वॉन्ट एग्री, आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया? सिंगल साइडेड एरर, एक तरफ एरर है और इससे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है। अंडरस्टूड दैट? ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग इन डिटेल। Now we have first errors which don't affect the trial balance or two-sided error. All right. So first we will take those errors which doesn't affect the trial balance because we have mistake at both the sides. Okay. And in this we have the different categories. Different kind of mistakes can be there. All right. So the first one we are talking, I think everyone is having book. Those who are staying at home, this is page number 19.2. And it's given the first category when an account has wrongly being debited in place of another account, कि एक अकाउंट के बदले आपने दूसरा गलती से डेबिट कर दिया है, ठीक है, तो ये मिस्टेक हो जाती है। एग्जाम्पल, well here it is telling machinery purchased for rupees 5000 has been debited to purchase account, right students? Okay, now pay attention. Don't look into your book. In this chapter you have to remember 2 points only. Yes, those who are at home, 2 points you have to remember. You have committed some mistake, right? At both the points, either this is single sided or double sided, these 2 points you have to keep in your mind and this chapter will be very easy for you. The first point is you have committed some mistake. तो कोई गलती हो गई है आपसे, ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे हम? गलती को ठीक करेंगे, क्या कर देंगे? उसका रिवर्स कर देंगे। मान लीजिए मैंने गलती से आपको 500 रुपये दे दिए, आपको नहीं देने थे, ठीक है, मैंने लव को दे दिए जबकि देने किसको थे? हरिओम को देने थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या किया मैंने, क्या गलती की? मैंने लव को दे दिए गलती से बिकॉज दे हैव द सेम कलर ऑफ देयर टी शर्ट, ओके, एंड देने किसको थे? हरिओम को। Now what I will do? How I will rectify my this mistake? बताइए क्या करूँगी मैं? नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, क्या करूँगी मैं? लव को कहूँगी बेटा गलती से दे दिए, गिव मी बैक एंड आई विल गिव इट टू हरिओम। एंड द सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू इन अकाउंट्स। जो गलती से, हेलो, यस, आपने गलती से कुछ डेबिट कर दिया है तो उसको तो क्रेडिट कर दो। This is the reason you people don't understand. I'm requesting you again and again, when I speak in the class, please don't discuss. Right? तो किसी को गलती से आपने डेबिट कर दिया तो उस इफेक्ट को कैंसिल करो। कैंसिल कैसे करते हैं अकाउंट्स में? रिवर्स कर देंगे। डेबिट कर दिया तो उसको क्रेडिट कर दो, गलती से क्रेडिट कर दिया था तो उसको डेबिट कर दो, गलती हो गई, ठीक? ओके, नाउ व्हाट टू डू? एक काम हो गया है हमारा, हमने गलती ठीक कर लिया, दूसरा क्या करना है? अब जो सही काम था वो भी तो करना है ना। हरिओम इज वेटिंग दैट गिव मी माई मनी, तो आई विल डू दैट। तो जिसको डेबिट करना है, जो सही चीज़ है उसको हम डेबिट कर देंगे, या जिसको क्रेडिट करना है उसको क्रेडिट कर देंगे। दैट्स ऑल इन द रेक्टिफिकेशन। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है तो समझ लो चैप्टर भी समझ में आ गया। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड विद दिस पॉइंट। मशीनरी परचेज फॉर 5000 हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेज। Students, in this chapter it is very important to understand the statement. Statement को समझ आना बहुत ज़रूरी है। Statement समझ में नहीं आई तो आप नहीं कर पाएंगे या गलत कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक जो सही एंट्री होनी चाहिए हम वो पास करते हैं, फिर जो गलत एंट्री आपने पास कर दी है वो करेंगे, एंड आउट ऑफ दैट वी विल फाइंड आउट द रेक्टिफिकेशन। लेट्स सी हाउ। ओके, सो परचेज मशीनरी फॉर 5000, दिस इज द राइट वन। ओके, सो व्हाट टू डू? Tell me the entry students. Purchase machinery for 5000. सही एंट्री क्या है? सब बताएंगे क्योंकि ये पता होगा तभी आप रेक्टिफिकेशन कर पाएंगे। Purchase machinery for rupees 5000. That's all.
machinery account debit to cash account. It's 5,000. Okay. So this is my correct entry. All right. Now what you have done further, it is telling has been debited to purchase. It's a common mistake I've told you in the starting कि जैसे कहा है मशीनरी परचेज, तो स्टूडेंट्स जिनको नॉलेज नहीं है वो परचेज वर्ड देख के परचेज को डेबिट कर देंगे, जो कि हम गुड्स के लिए करते हैं. ठीक है. तो गलती क्या हो गई, क्या कर दिया आपने, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कितना, 5,000. ये है गलत एंट्री. ठीक है. Is that clear, students? Now what I have to do, these two entries you should not pass in your fair notebook. ये आप अपने वर्किंग के लिए करेंगे, या तो वर्किंग नोट बना के उसमें कर सकते हैं या रफ में कर सकते हैं. ठीक है. हमसे क्या पूछा है कि रेक्टिफाई दिस एंट्री, हमें रेक्टिफाइड करनी है, तो ये एंट्री हमारी होगी रेक्टिफाइड एंट्री. चलिए, आपको क्या सिखाया था, जो गलती से गलत कर दिया उसे कैंसिल करो. क्या गलत कर दिया आपने, क्या गलत किया है, परचेज को डेबिट किया है. तो क्या करूंगी, ये इफेक्ट खत्म हो जाए इसका, टू परचेज अकाउंट बाय 5,000. इज दैट राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ओके. यहाँ पे आप देख रहे हैं परचेज अकाउंट डेबिट है, यहाँ परचेज को क्रेडिट कर दिया, तो दिस इफेक्ट हैज बीन रिमूव्ड. ओके, गलती ठीक हो गई. दूसरा स्टेप क्या करना है अपने को, जो सही चीज है और हमने नहीं की वो हम कर देंगे. क्या सही है, क्या सही करना है हमें, मशीनरी परचेज की इसे डेबिट करना है जो हमें किया नहीं है, तो कर दें इसे. ठीक है. मशीनरी अकाउंट डेबिटेड बाय 5,000. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज योर रेक्टिफाइड एंट्री विच यू हैव टू डू. समझ आया कैसे करनी है? Once again I'm telling you, in all the chapters journal entries are required. Still if you are lagging behind, you did not do, and those who are at home students, neither you are coming to the school nor studying at home. So please at least complete your journal entries, watch the videos and complete it, otherwise you are not going to understand anything in accounts. Okay? Yes. ये वाली तो सही है, आप सुना करो ध्यान. ये रेक्टिफाइड एंट्री है. हाँ ये सही है. ये कैश आप सही कर चुके हैं. ये मैंने एक्चुअली की थी बुक्स में, ध्यान से समझो. किस किस को समझ नहीं आया? ऑल राइट. और किसको नहीं आया? ठीक है, तो बोलते क्यों नहीं हो? हम क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में ये बताएं पहले. करेक्शन. ठीक है. चलिए इस एग्जाम्पल को यहीं छोड़ते हैं, फिर दोबारा से लव और हरिओम की तरफ जाते हैं. ठीक है. ऑल राइट. तो मैंने क्या किया, आई हैव पेड मनी टू लव, पेड कैश टू लव, ये कर दिया मैंने. तो एंट्री के वे में लिखे तो क्या लिखेंगे हम, लव अकाउंट डेबिट टू कैश. आर यू गेटिंग? ठीक है. So what to do, where to write, here is a space. Okay, what is the entry? Love account debit to cash 500, ज़्यादा नहीं लेंगे. ठीक है. ओके, ये कर दिया मैंने. अब आप सब बताएं, अपना नाम प्रिज्यूम कर लो, लव की जगह अपना नाम रख लो, यू विल अंडरस्टैंड बेटर. तो क्या गलती कर दी मैंने, कैश तो ठीक है, बुक्स में आपके कैश बुक जो बन रही है उसमें से 500 रुपये गया है, वो बात ठीक है. ओके, बट गलती क्या हो गई, लव को आपने डेबिट कर दिया, जबकि लव का कोई लेना देना नहीं था, मैंने उसको दे दिया. नॉर्मली हम बात करें तो बड़ा सिंपल है कि लव से मैं 500 रुपये फटाफट से ले लूँगी, गिव मी बैक माई मनी. ठीक है. लेकिन जो हमने बुक्स में लिख दिया है उसको कैसे करेंगे, लव को डेबिट कर दिया. आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ, आप बताएं. मैंने बोला था ना कि गलती हो गई है तो उसे रिवर्स कर दो. कैसे होगा रिवर्स अब ये? यस अमन, कैश को छोड़ो, आप सिर्फ लव का बताएं. लव का अकाउंट गलत हो गया है, लव को मैंने गलती से बेचारे को ले आई और डेबिट कर दिया. क्या करूं इसमें मैं अब, बोलो. ये बात समझ में आ गई सबके, आपको आ गई?
राइट? अब ये 500 रुपये मेरे हाथ में, इसका क्या करना था, किसको देने थे? अब मैं क्या करूं, हरिओम को दे दूं? क्लास में तो मैंने इनको हैंडओवर कर दिए, कहानी खत्म, प्रॉब्लम इज ओवर। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूं? हरिओम्स अकाउंट डेबिट बाय 500। इज दैट ओके? ये बात समझ में आई? तो अब यहाँ पे ये क्या चीज है, ये रेक्टिफाइड एंट्री है। तुषार इधर, वहां देखोगे जिंदगी में कभी समझ में नहीं आएगा, वहां बहुत सारी चीजें हैं। ये कितनी गंदी आदत है आप लोगों की। व्हेन टीचर इज टीचिंग इन द क्लास एंड यू आर जस्ट गोइंग थ्रू इन द बुक से ही पढ़ना था तो पढ़ लो ना घर में। तुम ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो, तुम्हें ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है और तुम ही क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो। इसीलिए दैट इज द रीजन, you know, these are the habits of the children, because of that you don't understand. Please be particular, it's for your benefit. तो ये क्या है, कौन सी एंट्री है? ये रेक्टिफाइड एंट्री है, ठीक है। अब मैंने हरिओम को पैसे दिए तो एंट्री तो होनी चाहिए थी हरिओम अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आई डोंट हैव टू पास दैट एंट्री, वो नहीं करनी है मुझे, ओके? क्योंकि कुछ हम पोर्शन उसका कर चुके हैं, तो जो गलती हो चुकी है सिर्फ उसको हमें ठीक करना है और ऑटोमेटिकली दोनों गलतियां मेरी ठीक हो जाएंगी। इनसे पैसा वापस आ गया लव से और हरिओम के पास चला गया। अंडरस्टूड? कुछ समझ में आया? चलिए लेट अस सी दिस एंट्री वंस अगेन, मशीनरी वाली जो हमने की है। गो थ्रू द स्टेटमेंट फर्स्ट, अपने आप से स्टेटमेंट पढ़ो जिनके पास बुक है, नहीं है तो आई एम टेलिंग यू। Machinery purchase, the same entry, machinery purchased for rupees 5,000 debited to purchase account. Have you understood the statement? Statement समझ में आ गई कि आपने मशीनरी परचेज की। मनीष, लोकेश, राइट, यस लोकेश, मशीनरी हमने परचेज की, ठीक है। एंट्री, सही एंट्री क्या है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये आप अपनी मेमोरी के लिए, अपने वर्किंग के लिए आपने लिखा है, ठीक है। क्या लिखा आपने? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिख लिया, बिकॉज दिस इज द करेक्ट एंट्री। नाउ व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव डन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दे रखा होगा, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखेंगे। इट्स टेलिंग दैट हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, कि आपने परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। आपने क्या एंट्री कर दी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इज दैट क्लियर? फाइन। अब ये दो चीजें हैं, ये सही वाली है, ये गलत वाली है, ठीक है। आप ये वाली कर चुके हैं बुक्स में। अब इसकी गलती सुधारने के लिए हमने ये दो एंट्री रफ में करके देखी एंड वी विल फाइंड आउट वन रेक्टिफाइड एंट्री जो इस गलती को ठीक कर देगी। पहला स्टेप, जो गलत हो गया है गलती से उसको रिवर्स कर दो। क्या गलती हुई है हमसे? अमन, क्या गलती हुई है इस एंट्री में? क्या गलती की है हमने? परचेज को डेबिट कर दिया। गेटिंग? हरिओम एंड लव, परचेज को डेबिट कर दिया गलती से। तो मैं क्या करूं? इसको रिवर्स कैसे कर पाएंगे? परचेज को हमने क्रेडिट कर दिया तो ये रिवर्स हो गया, इसका इफेक्ट खत्म हो गया, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा हो गया कि जो गलती से गलत हो गया उसका इफेक्ट खत्म करो, वी हैव डन। सेकेंड स्टेप क्या है? जो सही है और नहीं हुआ उसे करो। What is the right thing? We have purchased machinery, we didn't enter, हमने मशीनरी को डेबिट ही नहीं किया, तो क्या करेंगे आप? कर देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,000। तो आपको ये एंट्री फेयर में दिखानी है, ये आपके टेस्ट में या एग्जाम में पूछी जाएगी। ये दोनों आपके वर्किंग के लिए हैं। आप, इफ यू आर स्मार्ट इनफ, so you don't have to pass these entries and automatically after practice you can pass this entry, there is no problem, but I suggest you to pass it first in the rough and then do that. All right, चले आगे। Now next category is your when an account has been wrongly been credited in place of another account. Okay, time is over students. Okay, all right. Will you understand within, chaliye I take it within 1 minute. When an account has wrongly been credited in place of another account, किसी दूसरे के बदले आपने क्रेडिट कर दिया। 3,000 being the sale proceeds of old furniture has been credited to sale. These kind of mistakes only
यहाँ पे डेबिट का बताया था and here they are taking in the credit side. Okay, so what you have done, excuse me, 3,000 being the sales proceeds of old furniture has been credited to sales. Sir is waiting. All right students, thank you so much. We'll take this transaction tomorrow. Okay, so complete the related questions. Later on you will find illustration 1, 2 and a few 1. Okay, देख लेना जो भी है इसमें related जो भी illustrations and back questions, right? You must do yourself. Thank you.